students, welcome back to Savan Science Academy in a new chemistry lecture of the topic organic chemistry's basic principles. So we are rather seeing the IUPAC namings of the various organic compounds. So in the last lecture we finished with ethers. So we will see it's today a functional isomer of it, that is alcohols, a new functional group. So again, alcohols. So as we all know, the definition first of all. So these are called as hydroxy derivatives. These are known as hydroxy derivatives of alkanes. Hydroxy derivatives of alkanes, where generally alkane are represented by RH. So if we replace this hydrogen by OH group, single OH group, so what we get is the alcohols. That's why hydroxy derivatives of alkanes. Okay? So this is the basic definition of alcohols, or you can say these are the oxidation product of aldehyde and ketones. First oxidation product of aldehyde and ketones, क्योंकि aldehyde ketones को reduce करने के बाद reduction के बाद you can get alcohols. Aldehydes and ketones when reduced you can get alcohols over here. But basically the definition is this one. The general the functional group over here, which you can clearly see, the functional group is straightforward, that is single bond OH. Then its general molecular formula for monohydric alcohols. Monohydric alcohols means what? That carbon chain which has one OH group. So the general formula of the homologous series of alcohols goes like this. So you can say this is similar with ethers, or sometimes we also write CnH2n plus 1 O and H. So you can 1H is shifted over here. So you can give this or this as the general formula for alcohols. Now speaking of alcohols, obviously first तो हम देखेंगे इसका IUPAC naming. So this is written as a secondary suffix, as we all know. So it is written as what? So we say they are derivatives of alkane, so that E is replaced by all. That means, as we all know how to write the IUPAC names, it is the secondary prefix that we write first, that is the substituents, followed by primary prefixes, like in case of cyclo, bicyclo, in that case, so that will be the case. Then root word, that is the number of carbons, that is 8th, meth, pro, pent वगैरह जो भी है, तो ये आएगा. Then primary suffix जो है generally अगर double bond, triple bond, alkene, alkyne अगर आया तो इन, आइन यहाँ लिखेंगे, या alkane रहेगा तो इन, and followed by the secondary suffix, और यहाँ पे secondary suffix लगेगा OH for alcohol, that is all, जो इसका नाम है all जो है वो यहाँ पे लगेगा if alcohol is the dominant group in the chain. ठीक है, अगर कार्बन चेन में OH ये डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप है या इसके नीचे के फंक्शनल ग्रुप चेन में है और OH उस चेन में लगा है, सो दिस इज द वे वी राइट. सो यहाँ पे जनरली एंड में आएगा ऑल. ठीक है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्बन चेन में इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा, तब ये ब्रांच में लिखा जाएगा, तो ब्रांच में इसे लिखेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी. हम लोग इसे क्या लिखेंगे? इफ इट कम्स एज अ ब्रांच मींस इन प्रेजेंस ऑफ अ लार्जर फंक्शनल ग्रुप, और प्रायोरिटी वाइज जो हायर फंक्शनल ग्रुप्स है वो अगर कार्बन चेन में होंगे, तो जब ये ब्रांच में होगा वी विल राइट इट एज हाइड्रोक्सी. नेक्स्ट थोड़ा कॉमन सिस्टम भी देख लेते हैं, एंड देन विल सी द एग्जांपल्स. ठीक है, कॉमन नेम्स, अब इसके दो अलग अलग टाइप्स हैं. एक तो रेगुलर अपना कॉमन नेम, तो कॉमन नेम्स में भी जनरली कॉल देम एज अल्किल अल्कोहल्स. हमने अल्किल हलाइड्स किया था, लगभग सेम ही है. अल्किल ग्रुप्स वी कैन यूज द प्रीफिक्स लाइक एन, सेक, आइसो, नियो, टर्ट वगैरह, वो तुम यूज कर सकते हो. तो अल्किल अल्कोहल ये उसका कॉमन नेम है. एक और कॉमन सिस्टम है
of naming that is based, that we call it as carbinol system. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, कार्बिनॉल. एक्चुअली मीथेनॉल को हम लोग कार्बेनॉल कहते हैं, मतलब एक कार्बन और OH, दिस इज नोन एज कार्बिनॉल. ठीक है, सो अगर एक H हटा के मैंने उसको CH3 ग्रुप लगा दिया, सो दिस इज नाउ कॉल्ड कार्बिनॉल. सो उसको मिथिल लगा है, सो दिस विल बी मिथिल कार्बिनॉल. सो मीथेनॉल को ही हम कार्बेनॉल बोलते हैं. एक कार्बन और OH ये अगर होगा तो मिथिल कार्बेनॉल. वैसे अगर और एक होगा तो इथिल कार्बेनॉल. ठीक है, सिमिलरली C2H5 CH2OH. So obviously this one carbon and OH will be your carbinol, so it will be written as ethyl carbinol. ये भी हो सकता है कि इसके दो H रिप्लेस कर दिए मैंने, and you are going to get this. So ये एक कार्बन और OH, हम इसको कार्बिनॉल कहेंगे, ये दो मिथिल्स है, so it will be called as डाइमिथिल कार्बिनॉल. और अगर सपोज ये दोनों अलग अलग होते, यहाँ पे इथिल है, यहाँ पे मिथिल, इथिल मिथिल कार्बिनॉल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिल मिथिल, अगर इथिल में यहाँ लिखूं तो इथिल मिथिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कार्बिनॉल. तो जनरली ये जो कुछ स्टार्टिंग के अल्कोहल्स है, कभी कभी एंट्रेंस में बोलते हैं मिथिल कार्बिनॉल इज ऑब्टेन्ड, मतलब ही सादी भाषा में इथेनॉल है. तो इट इज जस्ट देयर टू कंफ्यूज यू. स्टार्टिंग के 5 6 7 अगर हम कार्बन अल्कोहल्स देखे, वो अगर कर ले काम हो जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है, सो ये छोटे मोटे ये सिस्टम, बट वी रेयरली यूज दिस. हम लोग का पूरा फोकस अभी फिलहाल IUPAC पे है. अल्किल कॉमन नेम तो हम अभी देखने वाले हैं. तो होप सो बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल सबको समझी है. अल्कोहल्स इज अ हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. H of alkene is replaced by OH, you will get alcohols. फंक्शनल ग्रुप OH है. जनरल फॉर्मूलाज ये दो हैं. IUPAC में जब लिखेंगे तो E की जगह पे OL, जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा IUPAC नेमिंग में, हम उधर ऑल लिखेंगे. ठीक है, अगर वो ब्रांच में आता है देन विल राइट इट एज हाइड्रोक्सी. इन दी ये ब्रांच आया तो यहाँ पे आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसे लिखना है. नेक्स्ट, कॉमन सिस्टम में हम अल्किल अल्कोहल बोलते हैं, और इसका नेमिंग, कॉमन नेमिंग एग्जैक्टली सेम है अल्किल हलाइड्स जैसा, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में किया है. एंड ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिस्टम है, दैट इज कार्बिनॉल सिस्टम इन दिस. सो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. तो चलो लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड IUPAC नेम्स एंड कॉमन नेम्स ऑफ द नॉर्मल अल्कोहल्स. तो हम देखते हैं 5 कार्बन तक के जो भी आइसोमर्स है उनके कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स. देखो मैंने पहले ही कहा है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एंड जो भी कॉलेज एग्जाम्स है, प्लस इवन एंट्रेंसेस में भी अगर हम बात करें, बड़े बड़े अल्कोहल्स या बड़े बड़े कंपाउंड्स बहुत कम पूछे जाते हैं. रिएक्शंस के लिए जो ये मोस्टली 5-6 कार्बन तक के जितने आइसोमर्स है ऑफ अ गिवन फंक्शनल ग्रुप, उसी के ऊपर बेस्ड ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चंस आ जाते हैं, 90-95%. रेयरली थोड़ा होता है कि 6-7 कार्बन्स के आगे किसी के रिएक्शन पूछी गई हो. तो रिएक्शंस के लिए अगर हम बात करें तो 5 कार्बन तक के हम सारे आइसोमर्स देखेंगे. 6 कार्बन के जितने अल्कोहल के आइसोमर्स, ये तुम लोग होमवर्क करोगे विद द कॉमन नेम्स एंड IUPAC. एक बार वापस फिर मैं रिपीट करूंगा, कॉमन नेम्स 5 कार्बन के आगे थोड़े डाउटफुल हो जाते हैं, इसलिए जनरली वी डोंट यूज कॉमन नेम्स बियॉन्ड 5 कार्बन. ठीक है, या इवन 5 कार्बन में भी कुछ कंफ्यूजन आएगा. जैसे अगर मैं सेक क्या बोल सकते हैं, सेक पेंटिल अल्कोहल बोलूं तो 2 पेंटेनॉल 3 पेंटेनॉल, अगेन इट विल कॉज एन इशू. सो जनरली 5 कार्बन या उसके आगे कॉमन सिस्टम फेल होता ही है. तो एंट्रेंसेस में भी हम जनरली देखें तो कॉमन नेम्स 4-5 तक ही यूज हो सकते हैं, तो वहां तक ही जनरली आएंगे. सो वो एक ध्यान रखने वाली बात है. एंड फिर हम थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स के देखने वाले हैं. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो सबसे पहला तो हम सब जानते हैं, फर्स्ट वन इज CH3OH. सो वी ऑल नो कि इसका IUPAC नेम क्या है, इट इज मीथेन एंड फॉलोड बाय द सफिक्स ऑल, तो मीथेनॉल. एंड कॉमन में हम अल्किल अल्कोहल बोलते हैं, तो मिथिल अल्कोहल, दिस शुड बी द नेम. ठीक है, पहले वाले तो इजी है, तो ये तुम लोग फटाफट कर सकते हो. नेक्स्ट वन जो है वो है
इथेनॉल। एज वी ऑल नो, दो कार्बन है, सो IUPAC नेम इथेन एंड दैट E इज रिप्लेस्ड बाय ऑल। यू कैन मतलब ज्वाइन करके भी लिख सकते हो, मैं जस्ट हाइफन डाल के बता रहा हूँ कि ये सफिक्स है। यू कैन राइट इट इन वन कंटिन्यूअस वर्ड, ठीक है। दिस इज सिंपली टू सेपरेट वर्ड्स में लिखना है। सो दिस इज अल्किल अल्कोहल, सो अल्किल इज ऑफ टू कार्बन्स, सो इट इज इथिल अल्कोहल। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, तीन कार्बन तो CH3 CH2 CH2OH। So IUPAC name wise longest chain तीन की है, so it will be propane and from 3 carbon onwards numbering भी शुरू होगी, तो 1 all 1 2 3 and यही अगर मुझे कॉमन नेम में लिखना है तो I will use the prefix N, ठीक है, जो है N for normal straight, N propyl alcohol, ये इसका नेमिंग होगा। नेक्स्ट सपोज CH3 CHOH है और ये है CH3, ठीक है, ये है CH3। सो क्या होगा, तीन कार्बन की चेन है 1 2 3, सो दिस IUPAC नेम गोज एज प्रोपेन एंड दिस विल बी टू ऑल एंड ये CH3 ग्रुप है, सो हम इसको आइसोप्रोपिल भी लिख सकते हैं। इवन सेकेंड कार्बन को OH लगा है तो यू कैन ऑल्सो राइट सेक प्रोपिल अल्कोहल, बोथ विल बी एक्सेप्टेड। ये है। नेक्स्ट चार कार्बन का अल्कोहल है, चार कार्बन का अल्कोहल मतलब ये आएगा, सो ऑब्वियसली दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन 1 ऑल एंड दिस विल बी N ब्यूटिल अल्कोहल, सो ये उसका कॉमन नेम होगा, स्ट्रेट चेन है तो। नेक्स्ट इसका आइसोमर क्या पकड़ेंगे अपन, सपोज ये ले रहा हूं मैं CH3 CHOH CH2 CH3, फर्स्ट की जगह सेकंड पे मैंने डाला है, तो क्या होगा, IUPAC में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट चेन ब्यूटेन, सेकंड पे OH है, सो इट इज टू ऑल। पर अब इधर क्या लिखोगे, तो देखो फंक्शनल ग्रुप कैरिंग कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, तो दिस इज सेकेंडरी कार्बन, तो प्रीफिक्स लगेगा सेक एंड दिस विल बी ऑब्वियसली सेक ब्यूटिल alcohol, so this will be sec butyl alcohol। next इसी का एक और आइसोमर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसका CH3 CH2OH और ये CH3, so इसका नाम क्या होगा ना, लॉन्गेस्ट चेन तीन की है, लॉन्गेस्ट चेन इसके साथ जाना है, so 2 पे ब्रांच है, so this will be 2-methyl propane and it should be ended with 1 all, ठीक है, 2-methyl propane 1 all। अगर कॉमन नेम है so this is iso group, तो चार कार्बन है, this is isobutyl alcohol, ठीक है, तो ये अल्कोहल का रहेगा एंड चार कार्बन का लास्ट आइसोमर है वो ये होगा, दैट इज CH3CH CH3OH। अब IUPAC नेम अगर हम देखें, लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3, तो सिंपल नेम इट्स 2-methyl propane 1 all, ठीक है, सॉरी 2 all, सॉरी 2 all आएगा, सॉरी। सो 1 है 2 है 3 है, 2 पे मिथिल 2 पे OH, तो 2-methyl, you can write it in this way and you can see the OH is attached to a tertiary carbon, so it is tertiary butyl alcohol। so चार कार्बन के सभी आइसोमर्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सबको समझाए क्या, सो इतने कंपाउंड्स तो आने ही चाहिए, मैंडेटरी, आगे का भी बता रहा हूँ वो भी आने चाहिए मिनिमम, तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स में जो ये लेसन आएगा इसके रिएक्शंस में कोई दिक्कत नहीं है। आधे बच्चों को आइसोब्यूटिल अल्कोहल ही पता नहीं है, ठीक है, सो IUPAC नेम्स रेयरली देते हैं वो, सो इन दैट केस कॉमन नेम्स वो यूज कर लेते हैं, सेक ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, इसमें बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, सो यू नीड टू जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। सेम टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे कॉमन नेम्स यूज करते हैं, तो उस पे ज्यादा ध्यान देना है। सो आई रब दिस ऑफ, ये होप सो ये सबने लिखा होगा, थोड़ा बहुत देता हूँ, लिख लो सब जगह जल्दी। सो तुम लोग अपने नोट्स तैयार कर सकते हो,
एटलीस्ट इतने आने तो मैंडेटरी है। जो अभी अपना और एक बाकी है पेंटिल वाला, तो वो हम कंप्लीट करेंगे एंड फिर हम लोग थोड़े से डिफिकल्ट वाले IUPAC नेमिंग्स भी ट्राई करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करेंगे, नाम है स्ट्रक्चर्स करके। सो दिस विल बी दी अल्कोहल्स। सो अभी 5 वाले बाकी है, तो 5 कार्बन के कौन से अल्कोहल्स के आइसोमर्स बाकी है देखते हैं, ठीक है। सो विल स्टार्ट विद दिस। सो बात करते हैं हम लोग 5 वाले। तो 5 कार्बन का मैं अब डायरेक्टली पूरे फिल नहीं कर रहा, आई एम जस्ट ड्राइंग द स्केलेटल कार्बन चेन, सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूं और हम लोग डायरेक्टली इसको देखने वाले हैं। तो 5 कार्बन का चेन है तो 1 पे है, तो सिंपल IUPAC नेम अगर हम देखेंगे इट विल बी पेंटेन 1 ऑल। अब थोड़ा समझ जाओ, फटाफट हम लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं चलो कर ही देता हूँ। फिर हम स्केलेटल में आगे के थोड़े स्केलेटल डायग्राम्स ड्रॉ कर दूंगा, या अपना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, इट विल बी एन पेंटिल अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट वन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे OH है, सपोज ये क्वेश्चन है, तो इसका नाम क्या आएगा, दिस विल बी पेंटेन 2 ऑल। अब इसका कॉमन नेम वापस प्रॉब्लम है क्योंकि OH यहाँ दिया दोनों सेक बोले जाएंगे, तो कॉमन नेम में गड़बड़ है यहाँ पे। सेक पेंटिल अल्कोहल बोलना तो चाहिए बट इस नाम के 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, इसको भी सेक, थर्ड पोजीशन पे दिया तो भी सेक ही बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 और इधर मैंने सपोज OH दिया बीच में, तो फिर इसका भी आंसर क्या आएगा, दिस विल बी IUPAC वाइज तो कोई डाउट नहीं है, दिस विल बी पेंटेन 3 ऑल 1 2 3 एंड 3 पे OH है, बट इसको भी हमें सेक पेंटिल ही लिखना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने बताया कॉमन सिस्टम तुम्हें नहीं पूछा जाएगा 5 के बाद, सिर्फ कुछ यूनिक है जो पॉसिबल है वो पूछे जाएंगे। जैसे अभी एन पेंटिल तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है एक किस्म से, CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH। सो इसका IUPAC नेम अगर हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन में ये आएंगे, सो 4 है और इधर 3 पे है, सो द नेम गोज एज it will be 3 methyl butane 1 all। ये IUPAC नेम है, but we know CH3 CH3 is iso, so this will be called as isopentyl alcohol। तो ये स्ट्रक्चर याद रखने जैसा है। सो ये एक हो गया, प्लस ये भी आ सकता है CH3 CH CH3 CH CH3 इधर OH। अब यहाँ पे कॉमन नेम वापस प्रॉब्लम है बट IUPAC दिया जा सकता है, इसका नाम क्या आएगा, दिस विल बी अगेन 3 methyl butane it's 2 all, ठीक है, कॉमन नेम नहीं आएगा। इसका जो एक लास्ट आइसोमर है CH3C CH3 और एक पॉसिबल है बट स्टिल अपन देखते हैं। सपोज ये भी एक OH है और यहाँ पे C2H5 लिख रहा हूँ शॉर्टकट, वो आगे शायद नहीं दिखेगा। सो लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, 2 2 पे है, सो द नेम विल गो एज 2 methyl इट विल बी ब्यूटेन 2 ऑल, या तो हम इसे टर्शरी पेंटिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, यू कैन सी इट्स अ टर्शरी कार्बन, सो टर्शरी पेंटिल अल्कोहल तुम लोग वो भी लिख सकते हो। सो टर्ट पेंटिल अल्कोहल ये उसका कॉमन नेम आएगा, कॉमन नेम IUPAC नेम। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन दिस इज CH3C CH3 C CH3 दिस विल बी CH2OH। सो इसका नाम कॉमन नेम आएगा नियो, बिकॉज दिस इज अ नियो कार्बन, नियो पेंटिल। कभी कभी पेंटिल को अमाइल भी बोला जाता है, सो रिमेंबर दैट। नियो पेंटिल अल्कोहल कॉमन नेम, IUPAC नेम में इट विल बी 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इट विल बी 2 डाइमिथाइल propane 1 also, 1 2 and 3, so it will be this. So these are the names of the alcohols up to 5 कार्बन जो है, जो तुम्हें देखने को मिलेंगे। इतने तो आने ही चाहिए भाई, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बोर्ड्स के लिए तो गारंटी दे सकता हूँ।
कि रिएक्शंस वगैरह जो करने होते हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा। IUPAC थोड़ा भी हम टफ वर्जन्स इसके देखते हैं एंड देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑन उल्टा नाम दिया है और फिर स्ट्रक्चर्स निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सो वो भी एक छोटा सा कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे उसके एंड देन हम ये अल्कोहल्स भी यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं इसके थोड़े डिफिकल्ट वर्जन्स वाले क्वेश्चंस, ठीक है। सो डिफिकल्ट वर्जन्स में जैसे अभी एग्जांपल मल्टीपल ग्रुप्स, सो 1 2 3 4, सपोज ये है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3। चलो तो अभी 3 ग्रुप्स है, एक हैलोजेंस, एक डबल बॉन्ड, एक OH। प्रायोरिटी किसको है? OH को, तो ऑब्वियसली इट शुड गो फ्रॉम हियर सो दैट इट विल गेट द लीस्ट नंबर। लॉन्गेस्ट चेन 4 की है, नंबरिंग यहाँ से होगी, बाकी सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखोगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आएगा? दिस विल बी 3 ब्रोमो। प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ है नहीं, फिर ये आएगा रूट वर्ड विच इज ब्यूट, देन आएगा प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है ना, सो इट विल बी 2 इन एंड सेकेंडरी सफिक्स ये है 2 ऑल, सो द नेम गोज एज 3 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 2 ऑल, सिंपल। नेक्स्ट थोड़ा साइक्लिक वर्जन्स के भी देख लेते हैं, चलो। सो सपोज ये एक है, यहाँ पे लगा है OH और यहाँ पे चलो लगा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH। चलो ये क्वेश्चन दिया है ऐसा है, अब चेन भी कॉम्प्लेक्स है वो सब देखो। तो अभी रिंग ये है तो सिंपल 1 तो OH को जाएगा, ये तो डबल बॉन्ड भले बट डबल बॉन्ड लीस्ट प्रिफर्ड है, सो 1 है ये 2 है, फिर ये लॉन्गेस्ट चेन है 2 की, इसमें ये 1 है ये 2 है, सो अभी हमको ये कॉम्प्लेक्स को नेम करना है, तो पेरेंट जो है वो साइक्लो, बट ये अपना सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेन चेन 5 की है, उसके सेकेंड को ये ग्रुप लगा है, तो फर्स्ट सेकेंड आएगा ये वाला, अब उसको लगा है ये 2 कार्बन चेन जिसके सेकेंड को क्लोरीन है, सो इट विल बी 2 ब्रैकेट 2 क्लोरो, 1 2 पे क्लोरो है, फिर ये 2 कार्बन है तो इथ, फिर इस पे भी डबल बॉन्ड है, इथ 1 इन, बट दिस इज अ ब्रांच सो दिस विल बी आइल, इथ 1 इन आइल, सो 1 sorry this is 2 then bracket 2 chloro इथ 1 इन आइल जो कि ब्रांच है, followed by primary prefix that is cyclo, root word pentane, ये रहेगा तुम्हारा प्राइमरी सफिक्स, अल्केन ही है ये, एंड देन यू हैव टू राइट इट एज 1 ऑल, ठीक है, 1 पे ऑल है, दैट इज योर अल्कोहल। नेक्स्ट वन, अगर हम थोड़ा सा इसमें और डीप जाए तो सपोज ये एक दिया गया है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, this is CH3, suppose this is double bond over here, this is CH2 and this is the case, तो suppose ये नाम देना है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंट अपने को पहले देखो, डोमिनेंट फंक्शनल ग्रुप ये चेन में है कि साइक्लिक में है, तो ऑब्वियसली ऊपर है, तो लॉन्गेस्ट चेन तो अपन इसे पकड़ेंगे, तो बच गए ये ब्रांच होगा, ये तो फंक्शनल ग्रुप है मेन, तो नाम तो ये की नाम आएगा, जाएंगे हम इस साइड से बिकॉज डबल बॉन्ड ऐसे भी ये 2 3 2 3 दोनों साइड से है, तो नेक्स्ट प्रेफर्ड इज डबल बॉन्ड, तो हम उसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करेंगे, सो ये नंबर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, 1 2 3 4 हम उसको लॉन्गेस्ट चेन में देंगे, पहला जिक्र इसका होगा, तो 3 दिस विल बी साइक्लो, ठीक है, now this is 1 and this is 2 and this is 3 and this is 4, so between 2 and 3 it is a double bond, so cyclo ब्यूट 2 इन आइल, ठीक है, इट्स 2 इन आइल, 3 cyclo ब्यूट 2 इन आइल, it will be buta rather bute, it will be 1 in and it will be 2 3 diol, because 2 alcoholic groups, so it will be a diol, so in this way you can give the names। देख सकते हो इजी है, रूल्स को फॉलो करो,
बाकी केक वॉक है लिटरली। एक और देखते कॉम्प्लेक्स में, एंड देन फिर हम लोग उल्टा देखेंगे, कुछ नाम ड्रॉ करेंगे इसके केस में। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, सपोज दिस देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज chlorine to go with it, which is CH2 over here. This is OH over here, CH2, and यहाँ पे अगर हम पकड़े तो CH, CH3 और यहाँ पे एक CH3 पकड़ लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स चेन है, CH2 and this, so this is H, this is also H, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से अगर हम देखें ये दो कार्बन्स है, सो हम लॉन्गेस्ट चेन इधर चाहे तो मैं एक और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए लिख देता हूँ CH3। कुछ जन अभी इसको भी, कुछ जन छोटी मोटी गलती करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इसको पकड़ लेंगे, सो वो नहीं होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 की लॉन्गेस्ट चेन है, तो देयर इज अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ 7 कार्बन्स व्हिच विल इंक्लूड ऑल द फंक्शनल ग्रुप एंड साइड चेन्स। सो ये हो गया। नेक्स्ट, अभी इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन्स का नंबर पहले लगेगा, फिर ये 1 मिथिल 1 इथिल आएगा, एंड फाइनली द नेम। सो नेम विल बी 1 2 3 4 5 and 6. So the name will be 5 6. It will be dichloro. It will be dichloro. Next, it will be 4, जो कि है 1 मिथिल, इधर लिख रहा हूं 1 मिथिल इथिल, 1 मिथिल इथिल। लॉन्गेस्ट चेन मैंने अभी कितने की बोली? 7, 3 and 1 7, this one is 7, तो इट इज हेप्ट, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है 2 पे, इट्स 2 आइन एंड 1 ऑल, सो दिस शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सबको समझा है? सो इस तरीके से ये अल्कोहल्स के नेमिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड फिर लिख सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ऐसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितने क्वेश्चंस तुम एनकाउंटर करोगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड यू विल गेट इट बेटर ऑन दैट। अब कुछ थोड़े 2-3 क्वेश्चंस हम उल्टे देखे, थोड़े बड़े वाले ही मैं ले रहा हूँ, दैट इज थोड़े डिफिकल्ट लेवल के, कि नाम दिए हैं, यू हैव टू ड्रॉ दी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन अगर इसका अगर हम देखें तो सपोज अगर हम देखना चाहेंगे, सो लेट्स सी, सो 4, दिस इज ब्रैकेट, it is 1 dimethyl 1 dimethyl ethyl, ये एक ब्रांच है, then you will get 3,6 dimethyl, it is oct, it will be 2,6 diene, and then 1,3 diol। सपोज ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब हम लंबा ही में बड़ा है, बट है इजी, चलो कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सबसे पहले रूट वर्ड देखो क्या है, ऑक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, तो पहले तो ये लिख लो 8, ठीक है। देन 8 होने के बाद लाइन से जाओ 4 पे ये है, तो 1 2 3 4 ये है, 4 पे लॉन्गेस्ट चेन इज इथिल, सो 1 and 2, उसको 1 और 1 पे 2 मिथिल्स लगे हैं, सो दिस इज 1 and this is 1, ये वैलेंसी पूरी कर दो, सो ये हो जाएगा 1 डाइमिथिल 1 इथिल। देन 3 और 6 पे, 3 पे भी एक मिथिल है, 4 5 6 6 पे भी एक मिथिल है, 3 6 डाइमिथिल, ये हो गया। ऑक्ट हमने दे दिया था, 2 और 6 पे डाइन, 2 बोला मतलब बिटवीन 2 and 3, सो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड। 6 बोला है, 4 5 6, तो 6 और 7 के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 और 3 पे ऑल है, सो 1 पे OH है, 3 पे भी O और H है, सबका नामकरण हो गया। लास्ट क्या बच जाता है, वैलेंसीज फिल करना, तो इसकी कितनी बच गई, 2, इसका 1, इसके सॉरी इधर एक गड़बड़ है, और
1 पे कर लेते हैं, सॉरी 2 पे नहीं आएगा, 5 बॉन्ड्स हो रहे हैं, सो विल मेक जस्ट स्मॉल चेंज हुआ है। सो क्योंकि इसकी वैलेंसी नहीं भर रही है, 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 और डबल इधर रहेगा तो गलत होगा, ठीक है। सो इट विल बी दिस, सपोज क्वेश्चन में वो है, वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1 और 6 में है, सो ये हो गया। देन इसका तो फिलिंग हो गया, थोड़ा खिचड़ी हो रहा है, तो फिर अपन इसको थोड़ा नीचे लिख लेंगे, उसमें क्या है, इधर है तो दिस विल बी CH3 CH3 एंड CH3, ऐसा लिख लेंगे, सो कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज द केस, तो दिस इज H, this is CH2, this is already 4, this is CH and this is CH3. So this should be the IUPAC structure of that given IUPAC name जो है। So this is how you need to write it, थोड़ा दूर हो गया तो ये इसको ऊपर लिख दो, कोई इशू नहीं। So this is how this structure ends up। एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं साइक्लो से रिलेटेड, एंड देन हम अगले लेक्चर में अगला फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। सो द लास्ट वन इज दिस साइक्लो वाला। तो सपोज एक क्वेश्चन है, दैट इज 2 ब्रैकेट 1 मिथिल प्रोपिल cyclohexane 1, 3 diene 1, 4 diol, ठीक है। तो ये तुम्हें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले साइक्लोहेक्स, सो सबसे में 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 कहीं से भी शुरू करो, मैं 1 यहाँ से ले रहा हूँ, सपोज दिस इज 1 फॉर मी। तो पहले 2 पे आते हैं, 2 पे लॉन्गेस्ट चेन किसकी है, प्रोपिल, 1 2 एंड 3, उसके 1 पे मिथिल है, so this will be this will be CH2, this will be CH3, तो उसके वैलेंसीज भर लो। 1 और 3 पे डाइन है, सो 1 और 2 के बीच में, एंड 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, एंड 1 पे ऑल है, 3 और 4 पे ऑल है, मतलब ही OH है। तो सिंपल है, इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाना चाहिए। सो दैट्स इट विथ IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। होप सो सबको समझा होगा, छोटी मोटी जो भी डाउट्स है वो भी सब कुछ क्लियर हो गए रहेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम देखेंगे मोस्टली कीटोन्स, ठीक है। सो स्टे ट्यून गाइस एंड हिट द बेल, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, टेल इट टू योर फ्रेंड्स, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक दिस lecture and comment it. Thank you.